So first of all, what is the differentiation under integral sign? We just state that, then we will do the problem based on this. The problem is very simple and easy. Okay. So statement, if f of x comma alpha means what? F is the function of x and alpha is a continuous function, is a continuous function of x, continuous function of x and alpha. Okay. And alpha is a parameter. Alpha is a parameter. Okay. And if partial derivative, that is dou f by dou alpha is a continuous function of x, continuous function of x and alpha together, alpha together. Okay. Throughout the interval, throughout the interval a comma b, a comma b, this is the interval where a comma b are constant, are known as constant. Okay. Constant and independent of alpha, and independent of alpha. And if I of alpha means I is any function, define I of alpha is equal to integration of limit a to b f of x comma alpha and dx, then we will have derivative, that is di, derivative of this function di by d alpha. D alpha is equal to the integral of limit a to b and partial derivative dou by dou alpha and into function of x alpha. ठीक है. And dx, x alpha dx. So this expression is known as what? Integral differentiation. This is the differentiation under what? Integral sign. So we differentiate this partially under this integral sign. The meaning of this is that. Okay. So differentiation, this is known as differentiation under integral sign. Means what? If f is the function of x and alpha, which is continuous. Okay. Here x is the variable and alpha is any parameter. You can take any parameter, just alpha, lambda, mu, and any other t. That are the that expression is known as what? Parameter. If f is the function which is continuous of x and any parameter alpha, and if partial derivative dou f by dou alpha is continuous function in the same variable together throughout the interval, this interval में, if this is continuous in this interval, और यहाँ पे a और b क्या है आपका? कांस्टेंट है, and which is the independent of alpha, means जो वैल्यू आएगा ये अल्फा पे डिपेंड नहीं होगा, which is the independent of alpha. And if I let the given function as I of alpha for the integral limit a to b f of x alpha dx, then we can find the derivative of this. Okay, let us see the problem, then you can understand it better. Okay, so example,
This is the formula. You have to remember this. Prove that first problem. Prove that integral of limit 0 to infinity, integral of limit 0 to infinity e raised to minus alpha x into sin x and divide by what? Divide by x dx, and which is equal to what? Cot inverse of alpha. Cot inverse of alpha. Okay. And after this, we have to deduce that. Hence, deduce that. Hence, deduce that. Deduce that means we have to prove that by using this. Deduce that integral of limit 0 to infinity sin x upon x and dx equal to what? Dx equal to pi by 2. We have to prove that by using this expression equal to what? Integral limit 0 to infinity sin x upon x dx equal to pi by 2. Let us write down the solution how to prove this. Okay. So first of all, we let I of alpha, given integral is what? I of alpha means I is the function of alpha, where alpha is the parameter. Okay, so we let the given integral 0 to infinity e raised to minus alpha x into sin x divided by what? X and dx. Okay, name this equation number 1. Name this equation number 1. See here, I is the function of only alpha. Here x treated as a constant. Okay, here x treated as a constant. So now here सर x using वाला दोनों टर्म कांस्टेंट है कि सिर्फ x बोला आपने? ये पूरा जो टर्म है ना, यहाँ पे देखो i इज द फंक्शन ऑफ अल्फा हो गया, तो अल्फा ये पूरा फंक्शन अल्फा के फॉर्म में है। बाकी तो यहाँ पे साइन जो है ना x जो है कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे मैं क्या करूंगा। यूजिंग डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, यूजिंग differentiation under integral sign, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में? DUIS, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ओके, साइन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर अल्फा। ठीक है, इसको हम पैरामीटर अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे किया है ना, तो इसे करेंगे DI डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, डी अल्फा। ओके, चलिए कर दीजिए डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन में। सो अंडर इंटीग्रल साइन, सो इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएट करना है हमको, तो लिमिट 0 टू इंफिनिटी डी बाय डो अल्फा ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स एंड डी एक्स। ओके, ये वाला हो गया। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अंडर इंटीग्रल साइन में। तो अभी देखो डिफ्रेंशिएट करो पहले 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, आई एम डिफ्रेंशिएटिंग। सो ए जो टर्म है आपका ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको भूल जाने का, हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? वाले रिस्पेक्ट टू अल्फा में। तो हम केवल इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेस टू एक्स ही होता है, अल्फा एक्स नहीं, इसको एक्स समझने का। ठीक है, ई रेस टू अल्फा का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेस टू अल्फा, लेकिन यहाँ पे क्या है? ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का फिर से लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स हो जाएगा। और बाकी जो ये तो ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है, इसको ऐसे रखो, साइन एक्स अपॉन
x एंड dx। ओके, अभी देखिए यहाँ से x और यहाँ से x चला जाएगा, यहाँ से x और यहाँ से x चला गया, तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और माइनस साइन को बाहर ले लो, दिस इज, और हियर यू विल हैव e रेज टू माइनस अल्फा x into sin x and dx। okay, now we know the result of e raised to ax sin bx वाला रिजल्ट आपको पता है इंटीग्रेशन का, जो मैंने यूज किया था, कहाँ पे यूज किया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले में, ठीक है, वही मैं यूज करूंगा यहाँ पे। सो दिस इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर डी आई बाय डी अल्फा, and this equal to नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट मैं उसको वापस एक बार लिख देता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस अल्फा एक्स इंटू साइन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अभी हम देखो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, अभी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अल्फा का काम हो चुका है वहाँ पे, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन पैरामीटर हमारा हो गया वहाँ पे, तो अभी हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x। yes, so apply the formula for that, so e raised to minus alpha x, okay, and divide by what, divide by alpha square and plus बीटा स्क्वायर, मतलब कि अल्फा स्क्वायर यहाँ पे बीटा है, तो बीटा स्क्वायर कितना है, 1 है आपका, ठीक है। और सर ये नहीं समझ में आया सर, वापस बताइए। हाँ सर ये नहीं समझ में आया। ये नहीं समझ में आया? नो सर। ये समझ में नहीं आया आपको? मैं देखो सर आपको इसको मतलब तो जो अल्फा इसको u से भी तो कर सकते थे। प्लस 1 डालते हाँ हैं वही, और अल्फा स्क्वायर हाँ वो फार्मूला है, बता रहा हूँ फार्मूला आपको कैसे आया। देखो ये फार्मूला ए वाला फार्मूला है, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, एंड दिस इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू क्या होता है आपका, ई रेज टू ए एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। सो दिस इज योर फार्मूला, ठीक है, आई एम यूजिंग दिस फार्मूला ओवर हियर, गेटिंग। सो यहाँ पे कंपेयर कीजिए, सो ई रेज टू अल्फा एक्स, सो अल्फा नेगेटिव अल्फा स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ साइन इज व्हाट, 1, तो 1 स्क्वायर इज 1, okay, 1 square is 1। now write down here, just wait, now here a, your a is what, your a is minus alpha, and sin bx, that is what, sin x only, and negative b, what is the b is 1, and cos bx, write down, cos bx means what, only cos x, getting, yes or no, yes or no? now apply the limit, upper limit, that is 0 to infinity, minus sign here, okay, चलिए, so this equal to what, negative upper limit, just put the upper limit, e raised to minus infinity and divide by, instead of x we putting infinity, so infinity multiplied by alpha is infinity, and here alpha square and plus 1, write down infinity, minus alpha sin infinity minus cos infinity, okay. So this is upper limit and lower limit what,
e raised to anything multiplied by 0 is 0, e raised to 0 divided by alpha square plus 1, and lower limit, that is minus alpha, and here sine 0 and minus cos 0. Okay, just close the bracket. So this equal to minus, now see here, e raised to minus infinity will be 0, so 0 multiplied by anything will be 0, यहाँ पे whole thing will be 0. ठीक है, इससे डजेंट मैटर, हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, सो दिस विल 0 and minus e raised to 0 is 1, e raised to 0 is 1, and here alpha square and plus 1. Now minus, see here, sine 0 is what? Sine 0 is 0, so 0 multiplied by alpha is 0, and minus here cos 0 is 1, cos 0 is 1. यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हो, e raised to minus infinity equal to 0 and e raised to 0 आपको क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे cos 0 is 1. ठीक है, आपको समझने के लिए मैं लिखा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है, सो दिस इक्वल टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको माइनस माइनस से प्लस, आगे का माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1. नाउ व्हाट हैव टू डू, what have to do, abhi we will integrate this, if I integrate this, so you can find the I, if I integrate this, so Yes, we sir. find I, therefore I integrating, get it. yes, now integrating on both sides with respect to what, अभी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, बोलो. बाकी अल्फा Alpha. के विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ अल्फा. सो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कर दिया, डी आई बाय व्हाट, डी अल्फा, एंड हियर डी अल्फा. ओके ओके, सो यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो दिस इक्वल टू व्हाट, this equal to minus sign outside integration of 1 upon alpha square and plus 1, and here d alpha. okay, d alpha इंटीग्रेट कर रहे हैं तो प्लस सी लगाना पड़ेगा, प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, वेयर सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, C is integrating constant. Okay, so if I integrate this, so this become what, only I. इंटीग्रेट करने के बाद डेरिवेटिव भाग जाता है तो ओनली I बचेगा, बट I क्या है आपका, I इज द फंक्शन ऑफ x, सॉरी I इज द फंक्शन ऑफ अल्फा, तो उसको आप I ऑफ अल्फा लिख सकते हो. ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. दिस बिकम ओनली I. नाउ व्हाट, दिस इज माइनस नेगेटिव ऑफ दिस व्हाट, negative of 1 upon tan square, sorry 1 upon alpha square plus 1 is what, cot inverse. बोलो, इसको बाहर मत Yes, लो, sir. ये अंदर ही ले लो, क्योंकि नेगेटिव है तो इसका cot इनवर्स आता है. Cot inverse alpha. हाँ, cot इनवर्स अल्फा, सो दिस इज cot इनवर्स अल्फा प्लस सी. इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो देखो, ये फंक्शन किसका है, अल्फा का है, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, आई ऑफ अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस सी. ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अभी आप क्या कर सकते हो, हमको वैल्यू ऑफ सी निकालना पड़ेगा. ठीक है, आपका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, योर इंटरवल इज 0 to infinity है. ठीक है, योर इंटरवल इज 0 to infinity, तो आपको वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा. सो वी पुट नाउ टू फाइंड अल्फा, यहाँ पे हो गया, टू फाइंड अल्फा नहीं, टू फाइंड कांस्टेंट सी, टू फाइंड कांस्टेंट
to find constant c. So for this, what have to do? We put alpha equal to what? Infinity. Alpha equal to infinity here into we get alpha equal to infinity. Just put कर दो alpha infinity. तो I of infinity is equal to what? Cot inverse of infinity and plus c. Cot inverse of infinity plus c. ओके लेकिन समस्या ये है कि sorry, cot inverse of what? Infinity. But cot inverse of infinity is how much? Cot inverse of infinity. Which value of this? Cot. 90. देखो cot means what? Cos upon sin infinity. तो ये आपको 0 मिलेगा, ठीक है? ये आपको होगा 10 0 हाँ ये 0 मिलेगा एन प्लस सी. लेकिन टेन आई ऑफ 0 क्या होता है उसके लिए हमको आगे देखना पड़ेगा. सो लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट पेज. ओके जस्ट राइट डाउन आई ऑफ infinity is equal to what? C. Okay, but what from 1? But from 1 मतलब इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1. कहाँ के गया 1 आपका कहाँ पे है? दिस 1. ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करके जरा देखो क्या मिलता है आपको. बट फ्रॉम 1 put alpha equal to infinity. Okay, we get I of infinity equal to integration of limit 0 to infinity. What is that? आ गया यहाँ पे e रेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा. अल्फा के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? इन्फिनिटी. तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी. सो दिस विल e raised to minus infinity here sin x upon x and dx. okay, so this equal to what? e raised to infinity अभी मैंने बताया आपको क्या होता है? 0 होता है. okay, this is 0 to infinity 0 and sin x upon x dx. यहाँ पे आपको बताया था मैंने e raised to minus infinity will be what? 0. ठीक है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 द होल थिंग विल बी 0. ओके, सो यहाँ से आपको क्या मिला? आई ऑफ इन्फिनिटी विल बी 0. इसको आप दूसरा नाम दे दो, यहाँ पे नंबर 3 दे दो. ठीक है, यहाँ पे नंबर 4 दे दो. सर ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 था और ई रेस टू इन्फिनिटी रहेगा तो ई रेस टू इन्फिनिटी रहेगा तो इन्फिनिटी आएगा. ई रेस टू इन्फिनिटी है ना, तो आपको ये इन्फिनिटी मिलेगा. ठीक है, समझना? ई रेस टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी. सो फ्रॉम यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 3 and 4 we get what? c equal to 0. आई एफ इन्फिनिटी 0 हो गया तो आपको c क्या मिल जाएगा? c is 0. ओके, नाउ c 0 हो गया. किधर गया ये? यहाँ पे पुट करो. c 0 हो गया ना, तो पुटिंग c equal to 0 in equation number 2. so putting c equal to 0 in 2 we get what? I of alpha equal to cot inverse of alpha. c आपका तो क्या हो गया? 0 हो गया. ओके, therefore I of alpha equal to cot inverse of alpha. इसको आप क्या नाम दे देते हो? इसको हम नाम देंगे 5. नाउ हाँ,
5 हो गया, बट अल्फा आई ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या है, दिस इंटीग्रल, ठीक है। देयरफॉर व्हाट, पुटिंग 1 इन 5, पुटिंग 1 इन 5, putting 1 in 5, we get what is the one, integration of limit 0 to infinity e raised to minus alpha x sin x upon x dx equal to what, cot inverse of alpha। यही प्रूव करने का था, जरा देख लो क्वेश्चन को अच्छे से। दिस यस सर। हो गया, दिस इज द प्रूफ, ओके, हैंस प्रूव, ओके, हैंस प्रूव्ड, ओके। अभी हमारा पहला पार्ट हुआ, ठीक है। अभी दूसरे पार्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा, हैंस डिडक्शन करना है ना। देख ले क्वेश्चन को, डिडक्शन कहाँ पे गया, ए, हैंस डिड्यूस दैट, मतलब इसको यूज करके आपको ए प्रूव करना है। देखिए अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ई रेस टू 0 हो जाएगा, ये सॉरी x इक्वल टू 0 नहीं, अल्फा इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 डालेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 0 डालेंगे तो ई रेस टू 0 हो जाएगा, बट ई रेस टू 0 इज 1 हो गया, तो साइन x अपॉन x हो जाएगा और dx हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ तो और मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। सो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पेज में मैं जाता हूँ, इसको अभी क्वेश्चन नंबर 6 डाल दो, ओके। तो नाउ पुटिंग अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर हाउ मच, इन इक्वेशन नंबर 6, in equation number 6 we get, this is the deduction, huh? This is deduction part, okay. Put alpha equal to 0 in equation number 6, we get integration of limit 0 to infinity e raised to 0 sin x upon x dx equal to what, cot inverse of 0, ठीक है। so this is therefore 0 to infinity sin x upon x dx equal to what, cot इनवर्स ऑफ 0, cot की कौन सी वैल्यू 0 होती है, दैट इज पाई बाय 2, 90। 90 डिग्री पाई बाय 2, ठीक है। सो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम में। ये आपका 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, पहला पार्ट डिराइव करोगे तो 6 मार्क के लिए, दूसरा पार्ट करोगे तो 2 मार्क के लिए, टोटल 8 मार्क के लिए क्वेश्चन वैलिड है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यस सर। यस ना। चलिए दूसरा करें, हाँ सर। चलिए दूसरा कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, example number 2, prove that integration of limit 0 to 1 x raised to alpha minus 1 divided by log x dx, and this is equal to what, log 1 plus alpha, here condition alpha is greater than equal to what, 0. We have to prove this. Can you prove this? Let us prove this proof, okay. So what is the first step, step number 1, स्टेप नंबर 1, यहाँ पे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कौन कौन से स्टेप है। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप नंबर 2, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 दे दो, ठीक है। देन
ये स्टेप नंबर 2 यहाँ तक आ गया। अभी स्टेप नंबर 3, ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 यहाँ हो गया। अभी स्टेप नंबर 4, ठीक है, ये स्टेप नंबर 4 हो गया, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, ठीक है। ये स्टेप नंबर 4 कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, यहाँ हो गया। नाउ स्टेप नंबर 6, कितना दिखा मैंने? सर 5 आएगा। 4 के बाद 5, स्टेप नंबर 5, स्टेप की नंबर 5 में आपको क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू पुट अप करना है, तो आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 6, दिस इज 5 हो गया, ये 5 ही है, ठीक है। स्टेप नंबर 5 यहाँ तक ही है, कांस्टेंट की वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पे। नाउ स्टेप नंबर 6, दिस इज स्टेप नंबर 6, ठीक है। इतने सारे स्टेप आपको करना है, स्टेप आपको याद रखना है। स्टेप नंबर 1 में व्हाट हैव टू डू, वी लेट दिस इज आई ऑफ अल्फा, ठीक है। शेयर इट इज नॉट नेसेसरी दैट यहाँ पे अल्फा ही मिलेगा, यहाँ पे दूसरा भी कांस्टेंट हो सकता है। यार कांस्टेंट में भी ए बी अल्फा म्यू बीटा गामा लैम्बडा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप केवल अल्फा लिया तो सर, अगर एग्जाम में आपको लैम्बडा दे दिया या म्यू दे दिया तो बोला सर तो मेरे को आया ही नहीं, सर ने कराया नहीं, तो इस तरह से नहीं करने का। पैरामीटर आपको कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो तो अगर दो दो रहे तो कोई पैरामीटर, हाँ अगर दो पैरामीटर हो गए तो? हाँ, तो उसके लिए अलग प्रॉब्लम है ना, मैं करूँगा अलग, 2 पैरामीटर है तो, ओके सर। ठीक। हाँ, ये तो अभी बिगनिंग है ना, तो बिगनिंग को बिगनिंग के हिसाब से करना पड़ेगा ना। अभी डायरेक्ट 2 वाला कर देंगे तो बोलोगे सर बहुत टफ है, तो नहीं सर, असाइनमेंट में दिया है ना आपने इसके लिए। हाँ हाँ वो आएगा आएगा, टेंशन मत लो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 x raised to alpha minus 1 divided by what, log x and dx, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2, step number 2, step number 2 means what, using differentiation under integral sign, using DUIS differentiation under integral sign with respect to what, अल्फा। चलिए डिफ्रेंशिएट करो इसको विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा में। हमने देखो यहाँ पे क्या किया था हमने लास्ट टाइम में, कहाँ गया वो स्टार्टिंग का, ये है। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अंदर इंटीग्रल साइन में। चलिए इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करो। सो दिस इज व्हाट, डी आई बाय डी अल्फा एंड दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 डो बाय डो अल्फा एंड x raised to alpha minus 1 डिवाइड बाय व्हाट, log x एंड dx, ठीक है। यहाँ पे डरने का नहीं, ये सब देख के, ठीक है, हमको केवल इससे मतलब है जहाँ पे अल्फा होगा। तो चलिए दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1, हमको देखो केवल न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए रेक्स टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ए रेक्स टू एक्स लॉग, लॉग कितना, लॉग ए, तो ए आपका ए रेक्स टू एक्स दैट इज हाँ ए रेक्स टू एक्स दैट इज व्हाट, एक्स रेक्स टू अल्फा लॉग ए रेक्स टू एक्स, लॉग ए आता है ना, मतलब लॉग एक्स आएगा, माइनस ए तो 0 हो गया आपका, और डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय लॉग एक्स एंड इनटू डी एक्स, ठीक है। अभी ए लॉग एक्स जाएगा घर पे अपने, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 एक्स रेस टू अल्फा एंड डी एक्स, ठीक है। अभी इंटीग्रेट कर दो। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। चलिए स्टेप नंबर 3, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। स्टेप नंबर 3,
integrating on both sides with respect to alpha, integrating on both sides with respect to what, अल्फा, क्या फंक्शन हमारा आई ऑफ अल्फा, सॉरी डी आई बाय डी अल्फा है, कुछ तो गलत कर रहा हूँ क्या, लेट अस वेट। ओके, जस्ट इंटीग्रेट कर दो उसको। दिस इज, मैं भी इसको वापस लिखता हूँ, दैट इज व्हाट, that is di by d alpha, and this equal to what, integration of limit 0 to 1 x raised to alpha and dx, यही है ना, जरा देख लो। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अभी ये x रेस टू n के फॉर्म में हो गया, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस x रेस टू n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, तो जस्ट इंटीग्रेट दिस, सो दिस इज x रेस टू अल्फा प्लस वन डिवाइड बाय अल्फा प्लस वन, ओके, एंड प्रोवाइड लिमिट 0 to 1, 0 to 1, 1 plus alpha तो constant है, taking outside 1 upon alpha plus 1, and here x raised to alpha plus 1 and provide limit 0 to 1. So upper limit, that is what, this is 1 upon alpha plus 1, upper limit is what, 1 raised to alpha plus 1 minus 0 raised to कुछ भी करो 0 आएगा, alpha plus 1, ठीक है। So this is only 1 upon alpha plus 1, okay। Now step number 3, this is not step number 3, this is step number 2 तक है। Now step number 3, integrating on both sides with respect to alpha, so integrating on both sides with respect to alpha, just integrate this, so we integrating, so integrating d I by d alpha is equal to what, integration of 1 upon alpha plus 1 and d alpha, ठीक है। if I integrating here, so derivative will gone, so this become only I, this equal to what, integration of 1 upon x is log x, ठीक है। so log, this is 1 upon alpha plus 1, so integration of this is log alpha plus 1 and plus put integrating constant, यहाँ पे integrating constant डाल दो, where c is integrating constant, ठीक है, where c is integrating constant, so plus c over here। now name this equation number, यहाँ पे मैंने 1 डाला, तो इसको आप 2 दे दो, ठीक है। so that is, इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख लो, that is, this is the function of alpha, so write down that is I of alpha equal to log alpha plus 1 and plus c, ठीक है। now what, now we have to determine c, तो step number 4 to find constant c, so how to find constant c, so if I put alpha equal to 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, log 1, but log 1 is 0, तो यहाँ से आपको c मिल सकता है, so just put कर दो यहाँ पे, putting alpha equal to what, 0, we get alpha equal to 0 in कहाँ पे put करना है आपको, alpha equal to 0 in 2, we get I of 0 equal to how much, log 0 plus 1 and plus c, so this is equal to what, log 1 and plus c,
but log 1 is what? Move to the next page. Therefore I of 0 equal to what? Log 1 and plus c, but log 1 is what? Log 1 आपको क्या मिलेगा? 0. This is I of 0 equal to 0 and plus c, since log 1 is what? 0. Log 1 equal to 0. ठीक है. Now therefore I of 0 equal to c. Name this equation number what? इसको नंबर 3 दे दो. Name this equation number 3. Now step number 5. Step number 5. To find constant c. ये हो गया. ओके. स्टेप नंबर 5 यहाँ से चलेगा, पुटिंग सी से. तो इसको रहने दो, स्टेप नंबर 5 नहीं होगा. जस्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी. नाउ इक्वेशन 1 पे अभी मूव करना पड़ेगा. नाउ इक्वेशन 1 आपका किधर है? यहाँ पे देखिए. अभी पुट अल्फा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो एक्स रेस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स रेस टू 0, मतलब एक्स रेस टू 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, मतलब दिस विल बी 0. तो मतलब आई ऑफ 0 आपको क्या मिलेगा? 0. सो नाउ फ्रॉम 1 we put अल्फा. नाउ नहीं, बट लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा. बट from equation number 1 we put alpha equal to 0, we get I of alpha, मतलब I of 0 integration of limit 0 to 1 x raised to 0 minus 1 divided by log x and dx. Okay, so this equal to what? Integration of limit 0 to 1, x raised to 0 is 1 minus 1 divided by log x. सेम से यहाँ पे लिख सकते हो x raised to 0 is 1. ठीक है. So this is what? 1 minus 1 is 0. ठीक है. Name this equation number 4. And from 3 and 4 we get c equal to what? I of 0 है और I of 0 c है, तो c इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? c 0. c is 0. नाउ स्टेप नंबर क्या आएगा आपका? c 0 होगा. स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 4 हो चुका. स्टेप नंबर 5, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर किस में पुट करना है आपको? इक्वेशन नंबर 2 में. इन 2 we get what? I of alpha equal to log alpha plus 1 and plus c, मतलब 0. so therefore I of alpha हमने क्या लिया है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x raised to alpha minus 1 divided by log x, and this is equal to what? log alpha plus 1. यहाँ पे कंडीशन आपका क्या है? अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हो गया ना प्रूफ? यही करने का था क्या? यस सर. हाँ, यही तो था. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड. कितना आसान था ये सब, था कि नहीं? यस नो? यस सर. यस एक आपके लिए दूं? यस सर. ठीक है. एग्जाम्पल,
आसान देता हूँ। प्रूव दैट integration of limit 0 to infinity tan inverse of ax divided by x 1 plus x square dx equal to pi by 2 log 1 plus a। ठीक है, यहाँ पे a आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये आपको प्रूव करने का है, तो आप कर सकते हो इसको। यस सर। हाँ सर, ट्राई हाँ कर वो सकते हैं। और एक आग दूँ, एक आग और दूँ, हाँ सर। एक आग और दे दूँ। यस हाँ सर। चलिए एक और दे देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आसान देता हूँ। लिमिट चेंज कर दूँ। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to pi log 1 plus a cos x। इसका इंटीग्रेशन अगर आपको आएगा तो आसान से कर सकते हो, इंटीग्रेशन नहीं आ पाएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। एंड डिवाइड बाय cos x dx इक्वल टू pi sin inverse of a। कंडीशन इज गिवन 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1। ठीक है, ये आपका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैरामीटर आपका क्या है, पैरामीटर आपका a है, यहाँ पर भी a है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है। सो प्लीज़ डू दिस प्रॉब्लम एट योर होम।